Hello students, মই তোমালোকৰ সৌৰভ sir and I welcome you all to the official YouTube channel of Euphoria Academy. আশা কৰোঁ আপোনালোকে সবে ভালে আছে। আজি বায়োলজিৰ সেকেন্ড ক্লাস লৈ আহিছো। বায়োলজিৰ লাইফ প্ৰসেস অলৰেডি ফাৰ্স্ট ক্লাস আপোনালোকে চাব পাৰে বাৰু। ফাৰ্স্ট ক্লাস অলৰেডি আপলোড হৈছে বাৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাইছে। আপোনালোকে মেসেজ দিয়া মতে মই যিমানখিনি পালোঁ যে আপোনালোকে বস্তুখিনি বুজি পাইছে আৰু। বাট আজিৰ ক্লাস মানে এইটো আজি পাৰ্ট 2 যদি চাব পাৰে, ইয়াতে পাৰ্ট 1 আছিল, আজি বাৰু পাৰ্ট 2। আজিৰ ক্লাসটো বাৰু লাষ্ট ক্লাস হৈছে বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব, কাৰণ আজিৰ ক্লাছত আমি ডাইজেশন লৈ ডিসকাশন কৰিম। আমি যে খানা যেতিয়া খাওঁ আমি সবে গম পাওঁ, ফুডৰ পৰা আমি এনাৰ্জি, আমি যিটো খানা খাওঁ তাৰ পৰা আমি এনাৰ্জি পাওঁ। সেইটো মেটাবলিজম যিটো হয়, মানে এটা ডাইজেশন যিটো হয়, আমাৰ মুখত যেতিয়া খানাটো দিয়া হয় এইটো বাকাল কেভিটি বুলি কোৱা হয়। কেনেকৈ ডাইজেশন হয়, খানা আমাৰ মুখৰ পৰা যেনেকৈ ফুড পাইপেদি আমাৰ ষ্টমাকত যায়, ষ্টমাকৰ পৰা ইণ্টেষ্টাইনত যায়, কোন জাগাত কেনেকৈ ডাইজেশন এইটো জানা কিন্তু বহুত প্ৰয়োজন। আৰু জানা মানে ফৰ নলেজৰ সেক, ফৰ দ্য সেক অফ নলেজ তো ইম্পৰ্টেণ্ট, সবেই জানো বাৰু। আমি আমাৰ নিজৰ বিষয়ত আমি ষ্টাডি কৰি আছোঁ, বাট ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ এইটো আমি নিশ্চয়কৈ আমি গম পোৱাটো বা আমাৰ জানাটো প্ৰয়োজন যে আমাৰ সায়েন্সৰ পৰা যদি আপোনালোকে ৰিসেন্ট ট্ৰেন্ড যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে, এইটো যি এক্সামে কওক, এইটো আপুনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামে কওক, আপুনি ৰেলৱে এক্সামে কওক বা আমাৰ এছএছচি এক্সামছে কওক, আমাৰ সায়েন্সৰ পৰা কোশ্চেন্সৰ ৱেটেজ কিন্তু লাহে লাহে কিন্তু বাঢ়ি আছে, কিন্তু বাঢ়ে। এইটো মানে এটা আপৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ডত আছে সদায়। আমাৰ এইটো চাই আছোঁ বাৰু যোৱা 3-4 বছৰৰ পৰা সায়েন্সৰ নাম্বাৰ অফ কোশ্চেন অলপ বেছি হৈ আছে বাৰু। আৰু সায়েন্সৰ পৰা বায়োলজিৰ কোশ্চেন সদায় বেছি আহে। আৰু বায়োলজিৰ ভিতৰত এই লাইফ প্ৰচেছ মানে জুলজিৰ লাইফ প্ৰচেছ, যি লাইফ প্ৰচেছ আমি আমাৰ ডাইজেশন, ৰেস্পিৰেশন, এক্সক্ৰিশন, ব্লাড সাৰ্কুলেশন, হাৰ্ট, লাংস, কিডনি কেনেকৈ ফাংচন কৰে, কেনেকৈ ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টছ কেইটা কি, পাৰ্ট কেইটা কেনেকৈ ফাংচন কৰে, কেনেকৈ আমাৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে বস্তুখিনি হেল্প কৰে, কেনেকৈ কোঅৰ্ডিনেট কৰে, এইবিলাক জানা কিন্তু বহুত প্ৰয়োজন ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ মই কৈ আছোঁ। চ' আজিৰ সেশনটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াতে আমি ডাইজেশন লৈ ডিছকাছ কৰিম ইন ডিটেইলছ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। So let's start the second part of लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट पार्ट में जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात किए थे कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, किमान धৰণৰ न्यूट्रिशन আছে। ইয়াৰ পিছত আমি হলোজয়িক নিউট্ৰিশন, যি নিউট্ৰিশন আমি ফলো কৰোঁ, আমি হিউম্যান বিংছে যি নিউট্ৰিশন ফলো কৰে, দিস ইজ হলোজয়িক নিউট্ৰিশন। আৰু তাতে আমি নিউট্ৰিশনত আমাৰ বেলেগ বেলেগ যেনেকৈ ইনজেকশ্যন, ডাইজেশ্যন, এবজৰ্পশ্যন, এছিমিলেশ্যন, ইজেশ্যন, এইবিলাক লৈ কোনটো কি ডেফিনেশ্যন এইবিলাক কৰা হৈছে বাৰু। এতিয়া আজি আমাৰ মেইন ফোকাস আমাৰ আজি থাকিব বাৰু ডাইজেশ্যন। আমাৰ যে বডিত যে ডাইজেশ্যন হয় এইটো কেনেকৈ হয়, ক'ত হয়, কিভাবে হয়, বস্তুখিনি জানাটো বহুত প্ৰয়োজন। डाइजेशन, ठीक है, जिसको थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज मैं आपके बारे में ही आपको बोल रहा हूं। जो भी चीज बोल रहा हूं ये आपके शरीर में हो रहा है, ठीक है। देखिए डाइजेशन माने कि फार्स्ट ऑफ ऑल আমি খানা বনাই পিনে পুরা একদম ডালি ভাত ঠাত পুরা একদম বনাই পিনে যেতিয়া মুখত দি আছো, ইনজেকশন মুখত দিয়াৰ লগে লগে ডাইজেশন স্টার্ট হয়। কি হয় কি নহয় এইবিলাক লাহে লাহে কম বাৰু, বাট আমাৰ বডিত ডাইজেশন স্টার্ট ক'ৰ পৰা হৈ আছে, ফ্ৰম দ্য মাউথ। সো ফার্স্ট স্টেপ ইজ মাউথ। फ्रॉम द माउथ डाइजेशन स्टार्ट हो আছে। खाना मुखों पर जैसे हम खाना खाएंगे अलग थोड़ा चबाने के बाद इसको कहां से आएगा, गला से नीचे आएगा। इधर एक पाइप है, भगवान एक पाइप फिट करके दिया है। वो पाइप का नाम क्या है, इसोफेगस। बहुत बढ़िया। फ्रॉम माउथ ये खाना आपका आता है इसोफेगस। खाना माउथ पर आई, इसोफेगस ये वाला जो पाइप है। आफ्टर इसोफेगस एक बार देखिएगा, खाना इधर मुंह में डाले, इसको चबाए, इधर एक पाइप है, इस पाइप लेके भी इधर एक कुछ बातें हैं जो बाद में बता रहे हैं। इधर एक जंक्शन पॉइंट है, इधर से आपका एक फूड पाइप। ये जो इसोफेगस है इसको हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं। फूड पाइप বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পৰা আৰু এটা জংশন মানে যিটো বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা ওলাই, আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ৰাস্তা আছে উইন্ড পাইপ, যেটো দি আমি অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ই কৰোঁ। আৰু যি হোক ফুড পাইপেদি খানা আহে বাৰু। আহতে ইমানখিনি আহি গ'ল। ইয়াতে আমাৰ रिपकेज में कितना हड्डी होता है, ये छाती में कितना हड्डी है हम लोग का, 12 पेयर, 12 जोड़, 12 पेयर।
12 हड्डी इधर है, ठीक है। इसको आपको, ये हड्डी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए भगवान कैसे बनाए होंगे, हड्डी तो इधर नहीं, देखिए इधर भी तो दे सकता था, इधर क्यों दिया हड्डी? चेस्ट मारने के लिए नहीं, कारण है ये हड्डी इसीलिए दिया है बिकॉज आपके इधर जो ऑर्गन है वो इधर के ऑर्गन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ को बचाने के लिए। इधर आपको हार्ट मिलेगा, लंग्स मिलेगा, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट कंटिन्यूअसली बीटिंग कर रहा है, दुप 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 मार रहा है। एक बार मिस, आप भगवान को प्यारे, आप नहीं कोई भी भगवान को प्यारे हो जाएंगे। पेट का खाना, पेट एक दिन खराब हुआ कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन आप सलाइन लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन हार्ट 1 सेकंड के लिए बंद, देखिएंगे सामने इंद्र भगवान, हनुमान जी ऐसे घूम रहे हैं आपके अगल बगल, मतलब ऊपर चले गए ऑलरेडी, खत्म, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इधर आपका रिप केज दिया गया है, ओके। खाना खा लो, माउथ, माउथ और बड़ा पाइप, ইসোফেগাস, ইসোফেগাসে ডাইরেক্টলি এনেকে এইটো হাইৱে এনেকে থ্ৰু আহি যাব, ইয়াতে কোনো অসুবিধা নাই, কোনো টল গেট নাই, একো নাই, ডাইৰেক্ট আহি যাব ইয়াতে। ইয়াতে অহাৰ পিছত ইয়াতে এটা বেগ আছে, বেগ ইয়াতে, ঠিক আছে, ইয়াতে এইফালে নহয়, এইফালে এটা বেগ আছে, থলি আৰু দেখাত জে নিচিনা, জে পিছত দেখাম বাৰু, এটা জে নিচিনা, এটা জে শেপৰ এটা বেগ ৰাখা আছে। বেগটো বাৰু বেছি ডাঙৰ নহয়, এই সৰু এটা বেগ আছে, ইমান সৰু এটা বেগ, আৰু ইয়াক কোৱা হয় ষ্টমাক। ইসোফেগাসৰ পৰা খানা আহে ক'ত? ষ্টমাক। আভি যেতিয়া মই কৈ আছো বাৰু, ইয়াতে সৰু এটা বেগ আছে, আপোনাৰ এটা কনফিউজন হ'ব পাৰে, কি কয় চাই সৰু? ভাত খোৱাৰ সময়ত এটা থালি কমপ্লিট শেষ কৰি দিওঁ, চিকেন মাটন এক্সট্ৰাকে ক'ত সোমায় তেতিয়া? এতিয়া ভগৱানে বাৰু যেতিয়া বনাইছিল আমাক, তেতিয়া ভগৱানে গম পাইছিল যে মই বাৰু মানুহ বনাই আছো, বাট মানুহ আৰু দানৱ কম্বাইন এটা কম্বিনেশ্যন, আৰু কেপাচিটি বহুত। এইকাৰণে ভগৱানে এই বাকী অৰ্গান কেইটা যিমানে যেনেকে বনাক, এই बैग जो আছে যেটো स्टमक, ये इलास्टिक बनाइसे। इलास्टिक माने इसको आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं और जब ये खाली हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअस मूवमेंट। क्योंकि भगवान जाने यार कार केने के कैपेसिटी, कुने बार 2 केजी चावल एके खाए, यार कुने बार 200 ग्राम खाए, तो कैपेसिटी किसी का बढ़ सकता है। तो ये स्टमक अपने आप एक्सपांड होगा, इलास्टिक है, जब ये खाली हो जाएगा तो फिर से आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका है स्टमक। स्टोमक से खाना निकलने के बाद, अगर कभी भी रास्ते में आप देखते होंगे मटन वटन जब काटा जाता है, तो उसमें देखिएगा उसमें ना एक पाइप निकलता है, ऐसे पाइप निकल ही जा रहा है, निकल ही जा रहा है, निकल ही जा रहा है, बहुत लंबा पाइप होता है, देखे ना मटन वटन जब काटा होगा, देखेंगे बहुत लंबा एक पाइप निकलता है। उससे भी बड़ा पाइप हम लोग के पेट के अंदर है, लगभग 42 फीट। इतना लंबा पाइप आपके पेट के अंदर फिट किया गया है। कैसे करके? ऐसे 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 एकदम माने एक जगह कॉम्प्रेस किया गया है। खाना स्टोमक के बाद उस पाइप में जाता है, उस पाइप का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। এটার নাম হল স্মল ইন্টেস্টাইন। এই স্মল ইন্টেস্টাইন হৈ গল, এই স্মল ইন্টেস্টাইনৰ বাহিৰৰ ফালে এটা বৰ্ডাৰ আছে, যেনেকে বস্তুখিনি আপোনাক এনেকে চাই যদি বস্তুখিনি ইয়াতে সাপোজ खाना याते दिया होल, दिस इज द माउथ, खाना याते आही गोल, याते जिमानखिनि हम लोग को चबाना था चबा लिए। उसके बाद इस पॉइंट में एक जंक्शन है जिससे आपका ये आता है फूड पाइप, दिस इज द फूड पाइप, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसोफेगस, इसको बोलेंगे इसोफेगस। और ये जगह आपका, ये जो जहां पे खाना आप चबा रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे माउथ। माउथ का और भी नाम है जिसको बोलते हैं बकल कैविटी, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। ये जो माउथ यार आरो एक नाम होल बकल कैविटी। बकल कैविटी क्यों कहा? कैविटी माने की, कैविटी माने खाली जगह, खाली जगह। तो हम लोग का मुंह के अंदर ऐसा गोल एक खाली जगह है, अगर आप याद थोड़ा समझेंगे तो अंदर खाली जगह है जहां पे खाने को लेकर हम लोग चबाते हैं, तो ये कैविटी है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी, या इसको ओरल कैविटी भी बोला जाता है। ओरल कैविटी, ओरल रिलेटेड टू माउथ, ओरल कैविटी। खाना उसके बाद आता है इसोफेगस में, खाना आया इसोफेगस में। इसोफेगस में खाना आने के बाद, खाना आने के बाद इधर आपका रिपकेज है, 2 लंग्स है, ये है, वो है, हार्ट है, ये सब हो गया। उसके बाद इधर आपका आएगा एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, इधर एक ऐसा छोटा बैग जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोले हैं? स्टोमक, एहोल स्टोमक। इस स्टोमक से निकलने के बाद इधर आपका
ऐसा पाइप है, ऐसा पाइप है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और बाउंडरी माने साइडोत, स्मॉल इंटेस्टाइन और साइडोत की ऐसे यानी के अपनी कवरिंग पाबो स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में, और एकदम नीचे में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन के बगल में आपको ऐसे एक बॉर्डर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के इधर एक छोटा सा ऑर्गन है, क्या है मैं आप लोग बोलिएगा थोड़ी देर में। लार्ज इंटेस्टाइन की ये जगह पे एक छोटा सा ऑर्गन है, अभी इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अभी लार्ज इंटेस्टाइन से खाना बाद में एनस के थ्रू, एनस, ये एनस के थ्रू खाना आपका निकल जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो शरीर में जरूरत नहीं है, वो आपका एनस के थ्रू निकल जाएगा। माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस के थ्रू बाहर। क्लियर? ओके। अभी इतना सब बड़ो जे এই যে অর্গান লার্জ ইন্টেস্টাইন একদম এইফালে থাকে বড় একদম লাস্টত, এই অর্গানের নাম কি? ডাইজেশনত কোনো হেল্প নকরে বড়, ইনফैक्ट আমার বডির কোনো কামে নাই, स्टिल दिस इज देयर इन द बॉडी, लेकिन कभी ये बहुत ज्यादा फूल जाएगा, ये बास्ट करेगा तो आदमी इंस्टेंट मर सकता है। देयर इज ए बहुत छोटा सा ऑर्गन, बहुत সৰু এটা অর্গান ইয়াতে আছে, বহুত সৰু সাইজৰ, বডিত কোনো কামত নাহে, কিবা কাৰণত যদি এটো যদি ইনফেকশন হয়, ইনফেকশন হোৱাৰ লগে লগে এটো বহুত ডাঙৰ এটা বলৰ নিচিনা হৈ যায়, বহুত ডাঙৰ এটা কস্কো বলৰ নিচিনা সাইজ আহি যায় বাৰু। এটো যদি বাষ্ট কৰে বাৰু, বাষ্ট কৰাৰ লগে লগে মানুহে अपेंडिक्स, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के एकदम लास्ट में रहता है, शरीर में कुछ काम में नहीं आएगा, लेकिन इसमें इंफेक्शन होगा, ये फूल जाता है, बास्ट करेगा, आदमी मर जाएगा। सवाल इसमें एक आता है, जानने के लिए जरूरी है, अपेंडिक्स पहला बात है शरीर में क्यों है, अगर इसका कोई काम ही नहीं है तो क्यों है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अपेंडिक्स इतना छोटा क्यों होता है, क्यों छोटा होता है? ये तो बड़ा भी हो सकता था, इससे तो बहुत बड़ा आपका बाकी सब ऑर्गन है, अपेंडिक्स छोटा क्यों है? কি হয়, যেতিয়া হিউম্যান সিভিলাইজেশন যেতিয়া স্টার্ট হৈছিল আজিৰ পৰা মিলিয়ন অফ ইয়ার্স এগো, তেতিয়া আমাৰ হাইট মোৰ যেনেকৈ আজিৰ দিনত 5 ফুট 3 इंच, तो हाइट তেতিয়া नॉर्मली 7 to 8 फीट हुआ करता था। ह्यूमन बींग्स का हाइट 7, 8 फीट 9 फीट हुआ करता था। आपको इसका प्रमाण मिला है, वो वाला कल की मूवी देखे हैं, इसका प्रवास का जो कल की आया था, उसमें अमिताभ बच्चन का एक रोल था अश्वत्थामा बोल के। वो अश्वत्थामा का आप हाइट देखिएगा कितना लंबा है, वो भगवान है, ये वो सब कारण नहीं है। अश्वत्थामा का जब प्रभास के सामने आ रहा है 1-on-1 फाइटिंग के लिए, अश्वत्थामा का हाइट इतना लंबा और प्रभास उसके सामने शॉर्ट दिखाया गया है, हाइट में कम दिखाया गया है। हालांकि एक्चुअल में दोनों का एक्चुअल हाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रभास भी लगभग 6 फीट है। अभी ये डिफरेंस ऑफ हाइट क्यों है? हम लोग जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग का हाइट 7, 8, 9 फीट हुआ करता था। धीरे धीरे विथ इवोल्यूशन ये हाइट कम होता गया। क्यों कम होता गया? बिकॉज हम लोग को उस हाइट का जरूरत ही नहीं पड़ा। समझने के लिए, जिराफ का हाइट इतना, जो जिराफ का जो गला जो है पहले इतना बड़ा नहीं था, जिराफ का गला और घोड़ा और गधा जैसा ही था, छोटा सा। बाद में जिराफ जिन जगह पे रहते थे उस जगह का नीचे का जितना पेड़ पौधा था, खाते 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 खत्म। अभी उसको पेड़ पौधा कहां मिलेगा? तो धीरे धीरे ऊपर में उसको खाना था, तो ऐसे ऐसे जंप करके खाने लगे। कंटिन्यूअसली उनका स्ट्रेचिंग होता गया और 1-2 साल का बात नहीं है, ये बहुत हजारों साल लगा उनका गला इवोल्यूशन, इसको बोलते इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन होते 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 जिराफ का गला इतना बड़ा हो गया। सिमिलरली हम लोग का जो उतना बड़ा हाइट था, वो हाइट का जरूरत ही नहीं पड़ता था। वो हाइट देखा हम लोग थोड़ी उतना ये करेंगे, बिकॉज हम लोग ज्यादा दिमाग लगा दिए।
अरे वो उतना उतना मेहनत करके जिराफ जैसा कूद के कौन खाएगा, वो बाज से स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे खा लिए। तो हम लोग वो वाला एक्स्ट्रा हाइट का जरूरत हम लोग बंद कर दिए। धीरे धीरे ड्यू टू इवोल्यूशन हम लोग का हाइट कम होता गया। लेकिन जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी का हम लोग जब हिस्ट्री का चैप्टर शुरू होता है क्लास 6 में, उसमें लिखा जाता है आपका, मैं बोलते बोलते भूल गया, उसमें लिखा जाता है आवर पास्ट ऐसा बोल के कुछ था, जो भी है। उस टाइम क्या था, उस टाइम ना हम लोग हंटर्स एंड गैदरर्स, हम लोग को बोला जाता था हंटर्स एंड गैदरर। मतलब ह्यूमन जो था वो दो काम करते थे सिर्फ। तब आपको कॉलेज वॉलेज में जाके पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना होता था, अच्छा टाइम था, ये सब भी पढ़ने का जरूरत नहीं था। तो तब क्या करना था, जो डोमिनेंट लोग है वो जाएगा हंटिंग करने, उसके बाद जो लोग फीमेल है, जो लोग बॉडी के मामले में थोड़ा कमजोर है, वो लोग करेगा गैदरिंग। गैदरिंग मतलब इधर से कुछ खाने का कुछ फल वल मिला लेके आएगा, उधर से कुछ मछली वछली मिला लेके आएगा। और जब कोई वाइल्ड एनिमल को मारने का बात आएगा, डोमेस्टिक एनिमल को मारने का बात आएगा, वो करेगा मेल सब, जो डोमिनेंट है, थोड़ा बॉडी में थोड़ा हैवी है, वो लोग जाएगा जंगल में मारने के लिए। तो हंटर और गैदरर दो अलग अलग हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, उस टाइम हम लोग घास फूस ज्यादा खाते थे, बहुत ज्यादा घास फूस, बिकॉज तो तब तो चिकन कढ़ाई, चिकन दो प्याजा कहाँ था, वो सब नहीं था। उसे वो आग, फायर का डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ। तब तो सिर्फ आपको फल मूल ऐसे भी होता था, जो मिलता था कच्चा ही खाया जाता था। तो कच्चा खाने में दिक्कत है, किसी भी चीज को कच्चा खाने में दिक्कत है, इसलिए फल मूल पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, घास फूस पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। जो घास फूस फल मूल ज्यादा खाया जाएगा तो आपके शरीर में सेलुलोस ज्यादा आएगा। सेलुलोस घास फूस में होता है, सेलुलोस। ये सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है अपेंडिक्स। ये घास फूस को जो होता है उसमें रहता है सेलुलोस, ये सेलुलोस को डाइजेस्ट करने का काम है अपेंडिक्स का। तब अपेंडिक्स हुआ करता था बड़ा। धीरे धीरे हम लोग नए नए तरकीब सीखे, फायर का डिस्कवरी, मेनली फायर, जब पत्थर वत्थर घिस के जब फायर आया, फायर आने के बाद हम लोग क्या किए, घास फूस का टेस्ट से ज्यादा टेस्ट तो आपका चिकन मटन खाने में है, थोड़ा जलाने का काम है, जला लिए, ज्यादा खाने लगे, मछली वछली ज्यादा खाने लगे। तो ये सब मुर्गी वुर्गी हुआ तो अंडा वंडा ज्यादा खाने लगे, तो उसके चलते घास फूस का मात्रा धीरे धीरे कम होने लगा। जब घास फूस कम खाने लगे, सेलुलोस शरीर में कम आया। सेलुलोस जब कम आया, इसका यूज कम हो गया। जब इसका यूज कम हो गया, ये धीरे धीरे इनएक्टिव हो गया, इसका काम ही बंद है, कोई मशीन अब काम ही नहीं करती, यूज कैसे होगा इसका, धीरे धीरे इनएक्टिव हो गया। और आज के दिन में पूरा पूरी इनएक्टिव, ये काम ही नहीं होता है। अभी आप आर्गुमेंट दे सकते, क्यों सर, मम्मी तो डेली स्टार्टिंग में थोड़ा वो घास साग देता है खाने के लिए, और उतना सा साग खाने से कुछ नहीं होगा, वो सारा दिन खाते थे, अभी इतना सा साग खा रहे हैं, वो भी तो ऐसे देके पानी देके अंदर ले लेता है, तो ऐसा से कुछ नहीं होगा, वो अपेंडिक्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका अपेंडिक्स इसलिए छोटा हो गया। इसको बोला जाता है अभी वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या होता है, जी ऑर्गन हमार बॉडीत আছে কিন্তু কোনো কামত নাহে, जैसे कि अपेंडिक्स, जैसे कि ये वाला, ये जो लड़की लोग जिसमें आपका ईयर रिंग पहनते हैं, ये वाला जगह अभी खाली जगह है, कुछ किया नहीं जा सकता, इसमें अभी ईयर रिंग डाल के बैठे रहते हैं, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। इसलिए देखिएगा जब इसमें आप लोग पियर्सिंग करते हैं तभी खून निकलता है, निकलने से भी बहुत कम। लेकिन यही वाला पियर्सिंग अगर आप मान लीजिए ये जगह पे करेंगे तो ओ मागो बाबा गो शेष, जीवन शेष, बिकॉज इसमें आपका हड्डी है, इसमें कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, हड्डी नहीं है, क्योंकि इसको आप घुमा सकते हैं ऐसे, हड्डी को आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे खत्म, ये है कार्टिलेज। लेकिन ये वाला जगह एक टाइम में बहुत बड़ा हुआ करता था, ये वाला जगह, इसको बोलते पिन्ना, इसको बोलते पिन्ना, पिन्ना। ये एक टाइम में बड़ा हुआ करता था, यूज होता था, धीरे धीरे यूज कम हो गया, तो ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। नाक के सामने ये वाला जगह, इसको बोलते कॉकिक्स, इसको बोलते कॉकिक्स। ये वाला जगह अभी कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही है, ये वाला जगह थोड़ा प्रोटेक्शन देता है कुछ भी, लेकिन इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है। ये वाला ना आपका हड्डी है ना आपका मसल, ये आपका कार्टिलेज है, ये आपका कार्टिलेज है। तो ये आपका है कॉकिक्स, पिन्ना कॉकिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन। ये आपका अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन काम में नहीं है, सुंदरता बढ़ाने के लिए काम आएगा, अदरवाइज कुछ काम नहीं है। ठीक है, ओके। तो आपका डाइजेशन, ये आपका डाइजेशन का फ्लो हो गया, खाना हम लोग कहां से कहां लाते हैं। अभी आइए माउथ में,
शुरू करेंगे माउथ को लेके, ठीक है। शुरू करेंगे माउथ। माउथ खाना हम लोग कहां लेता है? माउथ में लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं, या इसको ओरल कैविटी अमीकुबो पारो। बकल कैविटी और ओरल कैविटी। अभी खाने को जब हम लोग मुंह में डालते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, खाने को मुंह में लेने के बाद द फर्स्ट थिंग, तो पहला चीज हम लोग करते हैं, फर्स्ट टाइम की करो, च्यूइंग, चबाते हैं उसको। दिस प्रोसेस, जो च्यूइंग, जो हम लोग उसको चबाते हैं, इसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन, चबाना, खाने को चबाना, पहला काम होता है चबाते हैं। बार बार बोला जाता है, कोई भी डॉक्टर आपको बोलेगा खाने को ज्यादा से ज्यादा चबाइए, चबाने से आपका खाना ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन जल्दी होगा। तो खाने को हम लोग जो चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ লক্ষ্য কৰিছে, আপোনাৰ ঘৰত যদি আজি কিবা মাংস বনাও, কিবা প্ল্যান হৈছে বা মাংস অলৰেডি মায়ে বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বাৰু, তেতিয়া মাংস বাৰু কিচেনত হৈ আছে, আপোনালোকে চাগে ড্ৰয়িং ৰুম বা ক'তবা আছে, আৰু এই দূৰৰ পৰা যেতিয়া স্মেল আহে, मुंह में पूरा पानी ही पानी, एकदम पूरा एकदम फ्लड। आज दोपहर को होगा पूरा, उस दिन आपको बोलना नहीं पड़ेगा नहाने जाओ नहाने जाओ, पहले ही नहा धोआ के रेडी, चिकन बन रहा है, ये बन रहा है। तो वो पानी क्यों आता है? वाई? वेरी गुड। ये जो पानी आता है, दिस इज नॉट द नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी आपका सीक्रेट होता है मुंह में, जब अच्छा स्मेल आता है, दिस को सैलाइवा, या की कोआ है, या कोआ है सैलाइवा। सैलाइवा, এই স্যালাইভা কোনে সিক্রেট করে? স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড। আমার বাকাল ক্যাভিটি, আমার মুখৰ ভিতৰত কি আছে? মুখত স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড আছে। স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড, এই স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে সিক্रेट করে স্যালাइवा, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि स्मेल आएगा तब सीक्रेट होगा, जब आप खाना मुंह में डालेंगे तब भी देखिएगा उसको ऑटोमेटिकली पानी अंदर आ जाएगा, उसको मिक्स करेगा उसको। तो ये सैलाइवा सीक्रेट होता है। ये सैलाइवरी ग्लैंड, शरीर के अंदर कितना सैलाइवरी ग्लैंड है? मुंह में कितना सैलाइवरी ग्लैंड है? हाँ, मुंह के अंदर कितना सैलाइवरी ग्लैंड है? 3 सैलाइवरी ग्लैंड है, 3। एक है आपका पैरोटिड ग्लैंड, एक है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। 3 सैलाइवरी ग्लैंड आपके मुंह के अंदर है। फर्स्ट वन इज पैरोटिड, नेक्स्ट इज सब मैंडिबुलर, लास्ट इज सब लिंगुअल ग्लैंड। जब आप खाना मुंह में डालेंगे, मुंह में डालते ही देखिएगा इधर से आपका जो चिक है, चिक गाल, जिसको हम लोग गाल बोलते हैं, यार पर पानी उलाब। सो এই সাইডত মানে ভিতৰৰ ফালে, আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पे इधर है पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर? उसके बाद सब मैंडिबुलर, मैंडिबल दांतर नाम है, स्पेशल दांतर नाम है मैंडिबल। এই सब मैंडिबुलर ग्लैंड কোত থাকে? এই যে তলৰ যে জ আছে, এই জায়গাখিনি মানে ভিতৰৰ সাইডত, আৰু ইয়াতে আছে सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ইয়াতে তলত, ठीक है। ये जगह पे, इसके अंदर में, इसके अंदर में है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इधर है आपका पैरोटिड ग्लैंड, और আমার টাং, जीभ, এই যে জিভা আছে, এই জিভৰ তলত আছে सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। टंग के नीचे से है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड, पानी छोड़ता है। ये जो साइड से आपका पैरोटिड ग्लैंड पानी देता है, माने सलाइवा देता है, और आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपका इधर से, मतलब इसका अंदर से इधर से आता है। ये तीनों तरीके का सलाइवरी ग्लैंड आपके मुंह के अंदर है, जो सलाइवा सीक्रेट करता है। अभी सलाइवा सीक्रेट करने के बाद क्या होगा? सलाइवा खाने के साथ ये मिक्सअप करेगा, खाने के साथ मिक्सअप करेगा। फायदा क्या है? लिक्विड फॉर्म करेगा, इसको नरम करेगा। दूसरा बात है, ये जो सलाइवा है, ये सलाइवा में आपको मिलेगा, इसमें एक एंजाइम मिलेगा, एंजाइम। ये सलाइवरी ग्लैंडत आपनालोके पाबो एटा एंजाइम। एंजाइम माने की? एंजाइम माने एटा केमिकल। एंजाइम केमिकल হয়, যে কেমিকলে ডাইজেশন করার কারণে সুবিধা করে, ডাইজেশন করার কারণে সহায় করে, বস্তুখিনি ব্রেকডাউন করার কারণে সহায় করে। কোনে? এনজাইম। কোনে সিক্রেট কৰিব? স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড। কত থাকিব? স্যালাইভাত থাকিব।
अरे ये एंजाइमर नाम की सलाइवरी एमाइलेस। ये एंजाइमर नाम हो सलाइवरी एमाइलेस। सलाइवरी एमाइलेस वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? হৈ গল। এতিয়া এই যে স্যালাইভারি এমাইলেস, আমি যে ডাইজেশন बारे बारे डाइजेशन को ऐसे बारू काक डाइजेशन करिब खाना फूड। अभी फूड में बहुत कुछ है। फूड में आपका हम लोग आगे चल के देखेंगे, फूड में आपका बहुत कुछ है, मिनरल्स है, वाटर है, बहुत कुछ है। लेकिन शरीर में मेनली डाइजेशन होता है तीन चीज का। तीनों चीज का डाइजेशन का जरूरत होता है। मिनरल्स, वाटर, ये सब का डाइजेशन का जरूरत नहीं होता है, बहुत सिंपल फॉर्म में आता है। कौन सा तीन चीज का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। हम लोग के खाने में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, रोटी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट है, आलू में कार्बोहाइड्रेट है, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। डाइजेस्ट करना पड़ेगा प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट डाइजेस्ट करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद डाइजेशन करना पड़ेगा प्रोटीन, और लास्ट में है फैट। ये तीनों चीज का डाइजेशन जरूरी है शरीर में। ये तीनों चीज का डाइजेशन शरीर में जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। क्लियर? प्रोटीन कहां मिलता है? अंडे में मिलेगा, मछली में मिलेगा, मटन वटन मिनरल्स में मिलेगा। फैट कहां पे मिलेगा? घी वी में मिलेगा, बटर में मिलेगा, फैट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका ब्रेकडाउन कौन शुरू करता है? सलाइवरी एमाइलेस। एक चीज याद रखिएगा, बहुत बेसिक सा बात है, क्वेश्चन में अगर नाम नहीं भी जानेंगे तब भी इस आइडिया से आंसर लिख पाएंगे आप लोग का, क्योंकि एमसीक्यू आता है। लेस, लास्ट में आपका वर्ड है लेस। लेस वर्ड जब भी आपको लास्ट में मिलेगा वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में ही उसका नाम जुड़ा होगा। लेस, एमाइलेस। एमाइलेस ये हमेशा कार्बोहाइड्रेट के साथ ही जुड़ा हुआ होगा, पहला बात। दूसरा बात है टोस। टोस, ये टोस वर्ड किसी के वर्ड के लास्ट में अगर आपको टोस दिखे, टोस या ओस, टोस या सिर्फ ओस, ओएसी, जैसे कि ग्लूकोस, जैसे कि गैलाक्टोस, जैसे कि फ्रक्टोस, जैसे कि मेल्टोस, लैक्टोस, लास्ट में टोस है। टोस रहना मतलब कार्बोहाइड्रेट। लास्ट में अगर टोस या ओस रहेगा, टोस या ओस, वो कार्बोहाइड्रेट होगा। लेस मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। तो सैलाइवरी एमाइलेस किसको ब्रेक डाउन करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। हम लोग जो खाना खाए उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है कौन ब्रेक डाउन करेगा? आपका सैलाइवरी एमाइलेस मुंह में ब्रेक डाउन करेगा। क्या सर कार्बोहाइड्रेट इधर ही काम खत्म, कार्बोहाइड्रेट के इसमें पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होगा। पूरा ब्रेक डाउन होते होते अभी टाइम है, तो मुंह में थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होगा। ये जो सलाइवरी एमाइलेस है ये ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाए हैं। इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा? मेल्टोस। ए कार्बोहाइड्रेट जो अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट याक ब्रेक डाउन करी याक भांगी पूरा ब्रेक डाउन कर कि बनाबो? मेल्टोस बनाबो। सिम्पलार, सिम्पलेस्ट নহয়, আমাক বনাব লাগে সিম্পলেস্ট ফর্ম, একেবারে সিম্পল। তো একেবারে সিম্পল হয় না, মোটামুটি সিম্পল হয়েছে, মোটামুটি ব্রেকডাউন হয়েছে। बात क्लियर है? समझे इसको? ओके, ठीक है, आगे जाए। नेक्स्ट, बकल कैविटी में जो होना था हो गया। अभी क्या होगा? खाना कहां जाएगा? अभी खाना आपका जाएगा इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस, खाना जाएगा इसोफेगस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ফুড পাইপ। अभी আপোনালোকে নিশ্চয় কিন্তু নোটিছ কৰিছে, যেতিয়া এটা বাচ্চাক মায়ে যেতিয়া খানা খোৱায় আৰু বা আমি যেতিয়া খানা খাওঁ, হাতেদি এইটো বনাই পিনে এটা এটা বলৰ নিচিনা বনাও, বলৰ নিচিনা। ইয়াৰ পিছত মুখত দিয়া হয়। এনেকে দিয়া হয় নেকি? এনেকে কেতিয়াও দিয়া নহয়। এটা বলৰ নিচিনা বনাই পিনে দিয়া। वाई? इसको बॉल जैसा स्ट्रक्चर क्यों दिया गया है? इसको तो
वेरी गुड। ये बॉल जैसा इसलिए बनाया जाता है, ऑब्वियसली उसको बच्चा चबाएगा या कोई भी चबाएगा तो बाद में बॉल जैसा रहेगा नहीं। ये बॉल जैसा बनाने का आइडिया इधर से आया कि फाइनली जब वो खाना मुंह से बकल इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाएगा, इसोफेगस में वो एक बॉल आकार में ही जाएगा, रैंडमली नहीं जाएगा, आगे पीछे लाफालाफी ऐसे डांस करते करते नहीं जाएगा, वो बॉल के आकार में ही जाएगा। क्लियर है? तो बॉल के आकार में जाना इजी है बिकॉज ये एक पाइप है, तो पाइप में अगर ऐसे बॉल जैसा जाएगा इजी मूवमेंट होगा। क्लियर है? तो इसलिए इसको बॉल आकार में दिया जाता है। अभी আমি খানা চিউ কৰাৰ পিছত মেষ্টিকেশন যেটো চিউ বুলি কলো, এটো কৰাৰ পিছত যেতিয়া খানা যেতিয়া আমাৰ ইসোফেগাছত যাব, এটা একটা বল শেপত যাব যেটো কয় बोलस। जिस शेप में इसोफेगस में खाना घुसेगा उसको बोलते हैं बोलस। बोलस माने कि एक बॉल आकार যেটো বনা হৈছে, বল যেটো शेप দিয়া হৈছে, দিস ইজ बोलस। এতিয়া মজাৰ কথা, खाना बारो गोल इसोफेगस, मान लीजिए ये आपका इसोफेगस है, खाना इधर से आके इसोफेगस में जाएगा और इधर आपका स्टोमक है, मान लीजिए इधर आपका स्टोमक है, ये आपका इसोफेगस फूड पाइप। तो बॉल आपका खाना आपका इधर मुंह से आके इधर बॉल आया और बॉल आपका ऐसे टुक करके नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं। ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर से बिल्डिंग से मैं एक बॉल छोड़ूंगा, बॉल टुक करके नीचे गिर जाएगा, ऐसे खाना इधर से टुक करके इधर गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक डेफिनेट रास्ता, एक डेफिनेट प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? ये आपका खाने का बॉल है, ये जो बॉल है, बॉल इधर रहेगा, ये जो पाइप है फूड पाइप, ये ऐसे फुला हुआ रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये नीचे आएगा तो ये जगह फुला हुआ होगा, उसके बाद और नीचे आएगा तो ये और नीचे फुला हुआ ऐसे होगा। मतलब ये ऐसे 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 जगह पे होल्ड करते करते नीचे जाता है, ऐसे टुक टक करके नहीं जाता है। एनाकोंडा मूवी देखे है? पहला वाला एनाकोंडा देखे थे? एनाकोंडा मूवी पहला वाला जो निकला था, सुपर हिट हुआ था, तब मैं छोटा था, आप लोग तो तब शायद जन्म भी नहीं होंगे, लेकिन देखिएगा अच्छा मूवी था। उस मूवी में दिखाया जाता है एनाकोंडा का जो आदमी पालता है, शैतान था, गुंडा था, विलेन था, बाद में एनाकोंडा उसको ही खा जाता है। तो जब उसको एनाकोंडा खाता है तो एनाकोंडा के पेट में उसको दिखाया जाता है कि वो मुंह से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अंदर वो ऐसा 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 हाथ उसका ऐसा ऐसा हो रहा है, वो अंदर धीरे 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 पेट के अंदर जाता है। तो वो चीज हम लोग भी छोटा मोटा एनाकोंडा ही है, ठीक है? तो वो हम लोग के पेट में भी ऐसे ही जाता है, ठीक है? ये जो मूवमेंट है, जो फूड पाइप में खाना जैसे ऊपर से नीचे जाता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस्टाल्सिस। इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। खाना जैसे ऐसे जो बॉल बना के जो नीचे जाता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। इसोफेगस के थ्रू इस मूवमेंट से खाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर अपनी अलग देखाइছে যে বাকাল ক্যাভিটি, মাউথ বাকাল ক্যাভিটিত কার্বোহাইড্রেটৰ ডাইজেশন হয়, प्रोटीन और फैटर डाइजेशन है नहीं, बकल कैविटी न हो। बकल कैविटी माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं होता है, शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद खाना आपका इसोफेगस के थ्रू नीचे जाएगा। क्या इसोफेगस में कुछ डाइजेशन होगा? आंसर इज नो डाइजेशन, नो डाइजेशन। क्वेश्चन आता है इसोफेगस में क्या डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑप्शन डी नो डाइजेशन। आंसर इज नो डाइजेशन। इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आएंगे आपका स्टोमक, नेक्स्ट आएंगे स्टोमक, पेरिस्टाल्सिस। स्टोमक एक जे शेप, शेप कैसा होता है? जे, इंग्लिश अल्फाबेट जो जे होता है वो जे शेप का होता है स्टोमक। ओके, स्टोमक लेकिन बहुत अभी खतरनाक चीज है। देखिए मान लेते हैं ये आपका स्टोमक है, ये स्टोमक में आपका जो स्टोमक का वाल है ना, स्टोमक का जो वाल আছে এই ওয়ালত এনেকে প্রোটেকশন দিয়া আছে, এনেকে প্রোটেকশন দিয়া আছে, ওয়ালত এনেকে প্রোটেকশন দিয়া আছে। কিহৰ কাৰণে দিয়া আছে? क्या होता है, हाँ हम लोग के खाना आपका अंदर आया, इधर से आपका खाना स्टोमक में आया, खाना आने के बाद इस स्टोमक में
स्टमक के वाल में स्पेशल ধরনের গ্ল্যান্ড আছে গ্ল্যান্ড স্টমাক के वाल में स्पेशल टाइप का कुछ ग्लैंड है এই গ্ল্যান্ড কেটা কি নাম দেয়া হয়েছে এই যে গ্ল্যান্ড আছে গ্ল্যান্ড কেটা কি নাম দেয়া হয়েছে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড এই গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডে কি সিক্রেট করে HCl হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্রেট করে এই গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডে हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करे कंटिन्यूअसली क्लियर है ये HCl बहुत खतरनाक अगर आपका पेट में जो HCl अभी है वो HCl अगर कोई निकाल के अगर आपके हाथ के ऊपर रख दे आपका हाथ आपका जल जाएगा इतना खतरनाक आपके पेट के अंदर है ठीक है तो इससे बचाने के लिए ऐसा एक लेयर बना हुआ है आपके पेट को आपके पेट ही जो बना रहा है HCl उससे बचाने के लिए एक लेयर बना हुआ है क्लियर अभी HCl इतना खतरनाक एसिड आपके पेट में क्यों है बिकॉज याद कीजिए अभी तक हम लोग प्रोटीन का डाइजेशन कहीं पे मिला ही नहीं मुंह में नहीं मिला इसोफेगस में प्रोटीन नहीं मिला लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा आप जो मछली खा रहे हैं चिकन खा रहे हैं मटन खा रहे हैं इसको डाइजेस्ट कौन करेगा तो ये पेट में स्टमक में पहला आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा एंजाइम करेगा कौन सा एंजाइम करेगा पेप्सिन एक एंजाइम का नाम है पेप्सिन कैसे याद रखेंगे P फॉर प्रोटीन P फॉर पेप्सिन P फॉर प्रोटीन P फॉर पेप्सिन पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन आपका डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन डाइजेस्ट करिब पेप्सिन किंतु कथा हलो पेप्सिने अलग माने नखरे वाली है थोड़ा नखरा दिखाते हैं पेप्सिने কৈছে বাৰু মই এনে কাম নকৰো মই ডাইজেশনৰ হেল্প কৰিম মই নিশ্চয়কৈ ডাইজেষ্ট কৰিম প্ৰোটিনক কিন্তু আমাৰ কন্ডিশন আছে কি কন্ডিশন আছে কি খানা যেটো খানা ওপৰৰ পৰা আহিলে বাৰু ওপৰৰ এই ইসোফেগাছৰ পৰা মোৰ তাতে আহিছে বাৰু মই ডাইজেষ্ট কৰিম কিন্তু ডাইজেষ্ট কৰাৰ কাৰণে খানা মোৰ এসিডিক বনাব লাগিব एसिडिक खाना कैसा होगा एसिडिक चीज कैसा होता है खट्टा होता है टेस्ट करने में खट्टा नींबू टेमरिंड तेतलिया की कहा है जो भी खट्टा चीज कार्ड दही या जो भी हम लोग खट्टा चीज खाते हैं उसमें एसिड रहता है तो एसिडिक बनाना पड़ेगा तभी मैं काम करूंगा अभी इसको एसिडिक खाने को एसिडिक खाना तो आ गया वो खाना हम लोग जो खाए हुआ है उसको एसिडिक कौन बनाएगा HCl बनाएगा जब भी आपका खाना इसमें आया जब भी पेट के अंदर आपका खाना आया ये आपका खाना है मान लीजिए तो ये HCl आके इस खाने पे काम करेगा पेट के अंदर और इसको एसिडिक बना देगा खट्टा बना देगा तब बोलेगा पेप्सिन ठीक है अभी मैं काम करता हूं क्लियर है बात इससे पहले और एक स्टोरी है छोटा सा स्टोरी ये है हम लोग के पेट में पेप्सिन बोल के जो एंजाइम वो रेडिली अवेलेबल नहीं है আমার পেটত এই পেপসিন যেটো ফাইনালি কাম করে আর ফাইনালি যেটা আমার প্রোটিন ব্রেকডাউন করার কারণে যে এনজাইমে হেল্প করে নাম হল পেপসিন কিন্তু পেপসিন আমার পেটত আগৰ পৰা अवेलेबल নাই আমার পেটত अवेलेबल আছে ভেরি গুড পেপসিনোজেন এই পেপসিনোজেন এই এনজাইম আমার পেটত অলরেডি अवेलेबल बट पेप्सिनोजेनर इमान क्षमता नाई जे ई हमार खाना डाइजेस्ट करे इमान क्षमता नाई ये अभी बच्चा है इसको अभी हीरो बनना है तो पेप्सिनोजेन बच्चा है इसको हीरो बन के बाद में ये सलमान खान बनेगा तो ये जो छोटा सलमान खान से बड़ा सलमान खान बनेगा ये बनाने के लिए कौन चाहिए HCl चाहिए ये जो HCl है ये आके पेप्सिनोजेन के ऊपर पहले रिएक्ट करेगा रिएक्ट करने के बाद इसको बनाएगा पेप्सिन और ये पेप्सिन बाद में उस खाने के ऊपर रिएक्ट करेगा कौन सा चीज के ऊपर प्रोटीन के ऊपर और ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन ब्रेक डाउन करार पिছত या प्रोटीएस बनाबो प्रोटीएस माने हल्का सा ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं करेगा थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देगा बात क्लियर है नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट मनत रखा प्रयोजन पेप्सिनोजेन पेप्सिन इबिलक HCl और मेनली तीनिटा काम आमार पेटत HCl থাকার মেইনলি তিনটা ফাংশন ফার্স্ট ফাংশন কি হবে হ্যাঁ ওটা পরে এটাকে বলে নি ফার্স্ট ফাংশন হবে আপনার পেপসিনোজেনক পেপসিন করার কাম হল HCl
নেক্সট কাম কি হল, খানা আমার পেটত যেটো খানা फूड या एसिडिक बनवार काम HCl बिकॉज जब तक एसिडिक नहीं बनेगा पेप्सिन काम नहीं करेगा। और तीसरा काम है खाने में अगर कुछ बैक्टीरिया जर्म्स अंदर चला गया उसको मारने का काम भी HCl का। तो HCl मेनली प्लेज 3 vital roles. First, to kill the germs and bacteria present in the food. Second, to convert pepsinogen into pepsin. Third, to make the food acidic so that pepsin can react on it to break it down. Clear? Okay. हो गया? ज्यादा बोरिंग लग रहा है क्या रे बाबा? ओके ठीक है। अभी एक चीज, ये जो लेयर है ना, ये जो मैं लेयर के बारे में बात बोल रहा था, लेयर, ये जो पेट के अंदर ये जो लेयर होता है, लेयर, ये जो आपका लेयर होता है, ये जो आपका पेट के अंदर लेयर बन चुका है, एक लेयर बना हुआ है, ये लेयर का नाम क्या है? ये जो पेट के अंदर आपका लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है? इसका नाम है, वेरी गुड, म्यूकस। এই যে পেটের ভিতরে যে লেয়ার এটা বনোয়া হয়েছে, এটা যে আপনার প্রোটেকশন দিয়া হয়েছে, নাম হল মিউকাস। এই মিউকাসে আপনার HCl এর পৰা পেটৰ যেটো আমাৰ ওয়ালক এটা কি কৰে, প্রোটেকশন দিয়ে। এতিয়া যদি আপনার পেট বেশি টাইম খালি থাকে, ফাস্টিং, বেশি ফাস্টিং হয়ে আছে, বহুত ঘন ঘন, বহুত রেগুলারলি, বহুত ফ্রিকুয়েন্টলি ফাস্টিং হয়ে আছে। नेक्स्ट, बहुत बेसी अल्कोहल कंजम्पशन हो है, जरूरत से ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है। तीसरा, बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं आप, हद से ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं। ये तीनों मेन रीजन है। क्या होता है, ये सब गार्बेज आपके पेट के अंदर जाते 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 एक टाइम होगा कि बीच में से आपका ये वाला जगह मान लेते हैं म्यूकस हट गया, ये जगह से म्यूकस गायब, ये जगह आपका म्यूकस नहीं है मान लेते हैं। म्यूकस जब नहीं होगा तो ये HCl को खाली जगह मिल जाएगा, इधर अटैक करेगा। ये HCl आपके अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा? आपके स्टोमक के लेयर को अटैक करेगा। इन्फेक्शन होगा, बुरा इन्फेक्शन होगा, बिकॉज HCl इज ए वेरी কনসেন্ট্রেটেড অ্যাসিড। আপনার পেটৰ যেতিয়া লেয়ারক যেতিয়া अटैक করিব, এটা বরদাস্তৰ বাহিৰত, এটা মানে इसका क्षमता नहीं है इसको रोके। इन्फेक्शन होगा, बहुत खराब इन्फेक्शन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्सर। अल्सर नाम सुने हैं ना, इसको बोलते हैं अल्सर। कब होता है? जब आपका पेट का म्यूकस कहीं से हट जाएगा, गायब हो जाएगा। कब होगा? वो तीनों रीजन जो मैं दिया हूं, दारू, जंक फूड और ज्यादा फास्टिंग। तो आपका पेट से ये एक लेयर हट जाएगा, म्यूकस हट जाएगा। हटने के बाद ये आपका आके इधर अटैक करेगा, अटैक करके आपका पेट में इंफेक्शन होगा, आपका ही पेट का HCl आपके ही पेट में इंफेक्शन करेगा, नाम है अल्सर। और ये अल्सर आगे चल के कैंसर का रूप लेता है, वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, तो खाली पेट ज्यादा नहीं रहना है, जंक फूड, दारू नहीं पीना है। और दारू पीने से भी मतलब ही नहीं करना है, थोड़ा बहुत पी के सो जाना है। ठीक है, और दारू पी के अपने आप को एकदम शाहरुख खान सोच के एकदम वैसे नहीं होना है। ठीक हो गया, ये आपका स्टोमक हो गया। स्टोमक का काम खत्म, प्रोटीन को ब्रेक डाउन हुआ, बाकी का नहीं। सबसे खतरनाक कौन है पता है? ये जो हम लोग क्या हम लोग किसको इसको ब्रेक डाउन करेंगे? काक काक ब्रेक डाउन करा कथा आसिल आमार, कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट, प्रोटीन नेक्स्ट, आटतके फालतू बस्तु फैट। এই কারণে মোর आज ये अवस्था, बिकॉज फैट को डाइजेस्ट करना बहुत दिक्कत है। फैट ज्यादा इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, वो बाद में जमने लगता है, जो कि मेरा हुआ है। अंदर मैं भी सलमान खान हूं, लेकिन वो एब्स निकल नहीं पा रहा है, अंदर दब के बैठा हुआ है। अभी क्या हुआ देखिए, आपका हो गया पेट का झमेला खत्म। जिसको थोड़ा समझिए, इंटरेस्टिंग है। आपका मुंह से खाना आया अंदर, मान लीजिए ये आपका ठीक है, ये मुंह से आपका खाना गया, इसोफेगस के थ्रू आया, इसोफेगस के थ्रू आया, आने के बाद इधर आपका स्टोमक है, स्टोमक का कार्यक्रम खत्म। अभी आइए देखिए, स्टोमक से खाना कहां आएगा? याद कीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्टोमक से आपका खाना आएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, थोड़ा पहले देखिए, उसके बाद लिखा लिखी कीजिएगा, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट लीजिएगा। खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस साइड एक पत्ता जैसा स्ट्रक्चर है, पत्ता जैसा, एक ऐसे पत्ता जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ, ठीक है, और इधर एक स्ट्रक्चर है ऐसे अम्ब्रेला जैसा, क्लियर? ये जो आपका ये जो पत्ता जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है पैनक्रियास, इसको बोला जाएगा पैनक्रियास। और ये जो अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर इसको बोला जाएगा लीवर। और ये जो आपका है ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? अभी ये जो लीवर है, लीवर के नीचे एक छोटा सा थैली जैसा जगह है, थैली जैसा, छोटा सा थैली जैसा है, जिसमें लीवर जो भी भेजेगा उधर आके जमा होगा। एक्चुअली क्या है, लीवर जो है, लीवर एक्चुअली इसका आंख खराब है, अंधा है, लीवर को दिखता नहीं है, तो लीवर का एक मैनेजर रखा हुआ है, जो मैनेजर लीवर के नीचे चुपचाप बैठा हुआ रहता है, ये लीवर का मैनेजर है। इस मैनेजर का नाम है गॉल ब्लैडर। सबका है अभी तक? मेरा नहीं है, मेरा काट के आउट हो गया। ये गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे रहता है, लीवर जो भी देगा गॉल ब्लैडर बोलेगा दीजिए प्रभु मैं रखता हूं, बाद में जब जरूरत पड़ेगा मैं आगे पास करूंगा। तो गॉल ब्लैडर है इसका मैनेजर। इधर है पैनक्रियास, बात क्लियर है? और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। স্মল ইন্টেস্টাইন में আকাশ কি লিভার খুঁজছো নাকি? আছে ওখানে, আছে আছে, আমার তোমার অনেকটা চাপা পড়ে গেছে, ভিতরে আছে। ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन का मान लीजिए ये तो बहुत लंबा एक पाइप है, तो बहुत दूर तक एक पाइप का एक नाम दिया गया है, उसके बाद ये नाम दिया गया, उसके बाद ऐसे, तो 3 अलग अलग हिस्सा पार्ट किया गया इसका। पहला पार्ट का नाम है डियोडेनम, दूसरा पार्ट का नाम है जेजुनम, और लास्ट पार्ट का नाम है इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मान लीजिए आपका इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, तो मान लीजिए इधर तक ये है आपका ड्यूडेनम, इधर से लेके मान लीजिए इधर तक ये है आपका जेजुनम, और लास्ट में है आपका इलियम। ऐसे 3 पार्ट किया गया है। क्लियर है बात? ओके। अभी इंटरेस्टिंग बात देखिए, আমার ডাইজেশন করার কথা আছে তিনটা বেলেগ বেলেগ कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट मुंह में थोड़ा डाइजेशन हुआ, पेट में आया, प्रोटीन हुआ, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी हो जाता है, लेकिन फैट बहु इमान মানে বেয়ারো ইয়ারো ক্ষমতা নাই যে মাউথ বকাল কেভিটি আমার স্টমাকে या डाइजेशन करे, एकदम घाटा रहा, ये अरा हुआ है, ज्यादा ये है, मैं बात किसी का सुनता ही नहीं है। तो फैट को डाइजेशन करने का क्षमता इन लोग के पास है नहीं। अभी इंटेस्टाइन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, इसके बाद हम लोग अगर याद कीजिए स्टार्ट किए थे माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाद में क्या था? लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में क्या था? एनस। ये लार्ज इंटेस्टाइन और एनस में आपको डाइजेशन नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, एनस से तो निकल जाएगा, तो डाइजेशन कहां करेगा? ये दोनों में डाइजेशन का कोई जगह है नहीं। क्लियर? अभी ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें भी 3 पार्ट है, ड्यूडेनम पहला पार्ट, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। ये ड्यूडेनम में, ये जो आपका ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम में डाइजेशन नहीं होता है, इलियम में डाइजेशन नहीं होता है, जेजुनम में भी डाइजेशन नहीं होता है, इलियम में भी डाइजेशन नहीं होता है। तो घूम फिर के कंक्लूजन क्या होता है कि जो भी आपको डाइजेशन करना है रे बाबा, आप सिर्फ ये जगह में कीजिए, ड्यूडेनम में कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, बाकी डाइजेशन का आगे चल के आपको रास्ता नहीं मिलेगा। होता है ना, आप इधर से गुवाहाटी में बस में जाते हैं, बोरपेटा में रुकाते हैं, जो भी आपको टॉयलेट वॉयलेट जाना है, खाना वाना खाना इधर ही कीजिए, बाद में बस नहीं रुकेगा, एकदम डेस्टिनेशन में
उधर ही है, आपका एनएस के थ्रू डायरेक्ट गुवाहाटी पार, लेकिन आपको जो करना है आपको इधर ही करना है, समझे जिसको। तो अभी ड्यूडेनम आपका बोरपेटा है मान लीजिए, तो जो करना इधर ही करना है अभी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोला आप लोग क्या पागल है, जो चीज माउथ नहीं कर पाया, जो चीज आपका स्टोमक नहीं कर पाया, वो मैं अकेला एक थोड़ा पाइप लाइक स्ट्रक्चर, मैं फैट को कैसे डाइजेस्ट करूंगा। कार्बोहाइड्रेट भी अभी लास्ट में उसको ब्रेक डाउन करके एकदम लास्ट में लाना है, प्रोटीन का भी अभी थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन बाकी है, और फैट का तो पूरा बाकी है जो आप लोग कर नहीं पाए। तो मैं छोटा सा पाइप में कैसे करूंगा, मैं ऐसे नहीं होगा। तो भगवान बाद में क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं दो वरदान देता हूं, एक है पेनक्रियास, एक है लीवर, ये दोनों मिलकर इसको हेल्प करेगा ब्रेक डाउन करने के लिए। ब्रेक डाउन होगा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। हेल्प कौन करेगा, पेनक्रियास और लीवर। बात क्लियर, ओके। अभी पहले आते लीवर में। लीवर शरीर के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड है। क्वेश्चन अगर आए व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी, आंसर इज लीवर। ठीक है, ओके। तो लीवर आपका एक केमिकल सीक्रेट करता है। लीवर एक केमिकल सीक्रेट, किसी का जॉन्डिस हुआ था कभी लाइफ में? हाँ, आपका और किसी का जॉन्डिस नहीं हुआ था? जबरदस्ती नहीं होना है, नहीं हुआ तो नहीं, अच्छा बात है। जॉन्डिस जब होता है तो आप डॉक्टर का आप सुनते होंगे कि आपके बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ गया है, आपका शरीर में बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ गया है, और बिलिरुबिन बढ़ने के चलते ही आपका आंखें हल्दी हो जाता है, हल्दिया हो जाए, अपना बॉडी हल्दिया हो जाए, यूरिनल कलर येलो हो जाए बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन कहां से आया? बिलिरुबिन आया बाइल से। बाइल, ये बाइल कौन सीक्रेट करता है? लीवर। क्या सीक्रेट करता है? बाइल, बाइल जूस। ये बाइल जूस कोने सीक्रेट करे? लिवरे सीक्रेट करे। बाइल जूस कोने सीक्रेट करे? लिवरे सीक्रेट करे। और এই বাইল বডিত যেতিয়া বেশি হৈ যায় বা এটো যেতিয়া রিফাইন করা নহয়, তেতিয়া বাইল লাহে লাহে আমার বডিত জমা স্টার্ট হয়, আর ইয়াক তেতিয়া আমার বডি, বিকজ ইয়ার কালার হয় হালদি কালারর, येलो কালারর, এই কারণে আমার বডি লাহে লাহে আমার येलो कलर হওয়া স্টার্ট হয়। तो इसलिए देखिएगा जब किसी का जॉन्डिस होता है तो डॉक्टर बोलता है कुछ दिन तक एकदम सादा खाना खाइए, नॉर्मल बॉयल खाना खाइए, और मीट मछली सब मत खाइए। क्यों? बिकॉज आपका डाइजेशन में आगे चल के देखेंगे ये लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी देखेंगे लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जब जॉन्डिस होता है सबसे पहला जो ऑर्गन आपका बॉडी का इफेक्ट होता है दैट इज लीवर। लीवर आपका उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, उसका मैनेजर उसका पागल हो गया, मेरा माई बाप खत्म, उल्टा उल्टा काम कर रहा है, बाइल ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, बॉडी में बाइल ज्यादा है, बॉडी में आपका वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, तो आगे चल के हम देखेंगे फैट और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला जाता है सादा खाना खाइए, ज्यादा मीट मछली मत खाइए जब जॉन्डिस होता है। क्लियर है बात? अभी ये जो लीवर है, लीवर अभी स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है कि देखिए खाना ऊपर से आ रहा है, स्टोमक तक आ गया, मेरे इधर आएगा, आपको क्या करना है कीजिए। तो लीवर बोला है कि मैं डाइजेशन बोला हूं, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली डाइजेस्ट करके आपको एकदम फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, पूरा फाइनल प्रोडक्ट आपको ही करना है। तो बोला ठीक है, आप क्या हेल्प करेंगे? तो लीवर क्या करेगा? लीवर जो बाइल जूस देगा, बाइल जूस, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस आके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये बाइल जूस आके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर से ये जाता है, ऐसे जाते जाते एक डक्ट है, डक्ट माने पाइप जैसा है, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट, माने जिससे जिस पाइप से बाइल धीरे धीरे नीचे जाएगा। ये बाइल डक्ट से होते हुए ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आएगा। अब ये बाइल जूस क्या करेगा? ये जो फैट आया था, फैट याद कीजिए, फैट खाने में फैट है ना हम लोग का, इसको तो ब्रेक डाउन करना बहुत दिक्कत है। बिकॉज क्यों इसको ब्रेक डाउन करना दिक्कत है? वाई नॉट कार्बोहाइड्रेट, वाई नॉट प्रोटीन, वाई फैट इज सो कॉम्प्लिकेटेड? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटर जो दाना जिबिलाक मॉलिक्यूल दी बनवा होइसे तो बहुत डांगर साइजर, वेयरएस कार्बोहाइड्रेट का छोटा है, प्रोटीन का उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन फैट से बहुत छोटा है, और फैट का एक एक मॉलिक्यूल एकदम हाथी जैसा, तो उसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। अभी ये बाइल क्या करेगा? बाइल आके ये जो खाने में जो फैट है, ये बाइल आके फैट के अंदर फैट को रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा? এটা बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, या क्या है? एमल्सिफिकेशन।
এমালসিফিকেশন অফ ফ্যাট, এই যে বাইল জুস আহি গল বাৰু, বাইল জুস লিভাৰৰ পৰা আহিছিল গল ব্লাডাৰে ষ্ট'ৰ কৰিলে, গল ব্লাডাৰে ষ্ট'ৰ কৰি যেতিয়া খানা আমাৰ ইন্টেষ্টাইনত আহিলে, স্মল ইন্টেষ্টাইনত আহি পাইছে ডিউডেনামত, তেতিয়া গল ব্লাডাৰে বাৰু দেখা পায়, বাইলে বাৰু দেখা নাপায়, বাইলে কন্টিনিউয়াসলি সিক্रेट কৰি আছে, गॉल ब्लैडर तो रेगुलेट कर साई पिना खाना अभी पहुंचा है, अभी मैं थोड़ा बाइल दूंगा, खाना पहुंचा अभी मैं थोड़ा बाइल दूंगा, इसलिए इसको रखा गया बिकॉज ये खाना है, इसको नहीं दिखता, इसको दिखता है, ये अंधा है, ये इसको दिखता है, ये धीरे धीरे बाइल जूस सीक्रेट करेगा। ये बाइल जूस जब आएगा, बाइल जूस फैट के साथ रिएक्ट करके करेगा एमाल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये एमाल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, ये जो फैट का ग्लोब्यूल्स है, ग्लोब्यूल्स माने इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, ग्लोब्यूल्स बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल फैट का, इसके ऊपर बाइल काम करके इसको ब्रेक डाउन करके फैट का ड्रॉपलेट बनाएगा, ड्रॉपलेट। ये फैट ग्लोब्यूल से फैट ड्रॉपलेट इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाने का काम कौन करेगा, ये बाइल करेगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एमाल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कहां होगा, ड्यूडेनम में होगा। किसके चलते होगा, बाइल जूस के लिए होगा। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है। कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। क्लियर है बात, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अभी ये तो हो गया, अभी खाना आपका ये फैट थोड़ा अभी कमजोर हो गया, थोड़ा नहीं पूरा कमजोर हो गया, अभी इसको थोड़ा रिएक्शन करेंगे हो जाएगा। अब ये पैनक्रियास, ये पैनक्रियास का भी रोल है, इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश होता है, या अग्नाशय बोली कहा है, अग्नाशय, ठीक है। तो ये जो पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास एक जूस देगा, जूस, पैनक्रियाटिक जूस, एंजाइम। पैनक्रियास क्या करेगा, एक बार में एक जड़ी बूटी मिला के, जादू मंत्र दे के, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब मिला के एक जूस वो भेजेगा ड्यूडेनम के चलते। ड्यूडेनम में आके ये पैनक्रियाटिक जूस, वो वाला मैं ड्रॉ किया था, उधर से आके ड्यूडेनम में आके गिरेगा। ये पैनक्रियाटिक जूस में आपका क्या क्या है, ये पैनक्रियाटिक जूस में, और कुछ तो छोड़ा नहीं इधर से, ओके। ये पैनक्रियाटिक जूस में तीन चीज है। ये पैनक्रियाटिक जूस में ये तो मिक्स करके भेजा है, पैनक्रियाटिक जूस मिक्स करके आपका पठा दिया হয়েছে ডিউডেনামের কারণে। এই প্যানক্রিয়াটিক জুসত তিনটা বস্তু মেইনলি মিক্স করা আছে, এটা হল প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেস, ট্রিপসিন, and last লাইপেস। এটা প্যানক্রিয়াটিক জুসত এই তিনটা বস্তু থাকে। और এইফালে इंटेस्टाइनत বস্তুখিনি হয়ে আছে না, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब कहानी चल रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मतलब ड्यूडेनम में ये सब कहानी चल रहा है, ड्यूडेनम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी अपना एंजाइम है जिसको बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अपना एंजाइम है जिसको बोला जाएगा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस अभी देखिए एकदम लास्ट है, डाइजेशन अभी खत्म होने वाला है। अभी क्या होगा, ये पैनक्रियाटिक एमाइलेस, एमाइलेस कहां मिला था पहले एमाइलेस कहां मिला था, सैलिवरी एमाइलेस। क्या ब्रेकडाउन किया था, कार्बोहाइड्रेट। तो बचा कुचा जो कार्बोहाइड्रेट है पूरा ब्रेकडाउन करना है, ये करेगा। स्टार्च को कॉम्प्लिकेट, फाइनल ब्रेकडाउन होने के बाद ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ, स्टार्च तो प्लांट में होता है, हमारे तो ग्लाइकोजन हिसाब में स्टोर होता है, जो भी है। तो हम लोग का पैनक्रियाटिक एमाइलेस जो है, ये फाइनल ब्रेकडाउन, इधर का पैनक्रियाटिक एमाइलेस, और ये इंटेस्टाइनल जूस में भी थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करने का क्षमता है। तो वो इंटेस्टाइनल जूस थोड़ा, और इधर पैनक्रियाटिक एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट को पूरा ब्रेकडाउन कर देगा, पूरा ब्रेकडाउन करने के बाद उसको क्या नाम बोलेंगे बाद में बोलते हैं, लेकिन पूरा ब्रेकडाउन इधर हो जाएगा। ट्रिप्सिन ये ब्रेकडाउन करेगा किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन देखिए याद कीजिए, स्टोमक में आके ब्रेकडाउन होकर प्रोटीएज बना था, उसको पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, अभी पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा, एकदम खत्म। ब्रेकडाउन जितना होना था हो गया, एकदम पूरा कर देगा ताकि ये ब्लड में घुस पाए। तो कौन करेगा, ट्रिप्सिन।
ये प्रोटीन को करेगा। और ये लाइपेस, वो जो फैट का ड्रॉपलेट बना है ना, फैट का ड्रॉपलेट याद है, बाइल जूस फैट ग्लोब्यूल को फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया था, वो ड्रॉपलेट को अभी ब्रेक डाउन करके पूरा एकदम उसको एकदम खत्म कर देना, एकदम पूरा एकदम लास्ट प्रोडक्ट तक ले जाना है। कौन करेगा? लाइपेस। क्लियर? लाइपेस, ट्रिप्सिन, एमाइलेस और साथ में इंटेस्टिनल जूस भी ये तीनों काम में हेल्प करेगा। ये तीनों काम में मतलब एकदम फाइनल प्रोडक्ट लाने में हेल्प करेगा। बिकॉज इसके बाद और डाइजेशन का जगह ही नहीं है। इसके बाद तो जेजुनाम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस से थ्रू का आपका जगह है। क्लियर है? अभी आपका क्वेश्चन जो आता है, जो कि आपको जानना जरूरी है कि सर आप जो तब से बोल रहे हैं कि ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन तो हो गया, आप भी खुश, हम भी खुश, क्लास खत्म होने वाला है। लेकिन ब्रेक डाउन होने के बाद लास्ट में हुआ क्या? कार्बोहाइड्रेट जो आप खाए थे, कार्बोहाइड्रेट जो आपके खाने में था, इसको मुंह में ब्रेक डाउन हुआ, पेट में ब्रेक डाउन हुआ, इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हुआ, फाइनली क्या बना? जो कि एग्जाम में आता है, क्या बनता है फाइनली? ग्लूकोज। ये फाइनली आपका बनेगा ग्लूकोज। ये जो प्रोटीन आप खाए थे, प्रोटीन आपका मुंह में डाइजेशन नहीं हुआ, पेट में थोड़ा बहुत हुआ और इंटेस्टाइन में पूरा हो गया, ये ब्रेक डाउन होकर लास्ट में क्या बनेगा? ना, ओनली अमाइनो एसिड्स, ओनली अमाइनो एसिड्स। लास्ट फैट, ये फैट डाइजेशन होकर फाइनली क्या बनेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बहुत बढ़िया। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पूरा पूरी ब्रेकडाउन हो जाएगा। और दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो पाएगा, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इसको बाद में ब्लड रिसीव कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रिसीव नहीं एब्जॉर्ब करेगा। बात क्लियर है? इसको ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है? ओके, ये हो गया। अभी एब्जॉर्ब करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का डिडोनम तक कहानी खत्म। लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन, एनस नो डाइजेशन। अभी क्या आपका होगा? अभी क्या होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन का काम आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तब लार्ज इंटेस्टाइन रहने का क्या लाभ है? लार्ज इंटेस्टाइन अगर डाइजेशन नहीं करेगा तो इसका क्या काम है शरीर में? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है शरीर में? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। खाने में जो वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब करके शरीर में रख देता है, बाकी का भेज देता है। ठीक है? और ये अभी देखिए डाइजेशन खत्म आपका। ठीक है? डाइजेशन पूरा, ये टॉपिक खत्म। अभी थोड़ा एक बात, ये जो एब्जॉर्प्शन करेगा ब्लड, कहां से करेगा, कैसे करेगा? वेरी गुड। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर था, ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर था, ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर था, अगर आप इंटेस्टाइन को काट के थोड़ा इंटेस्टाइन निकाल के उसको खोल के देखेंगे अंदर पाइप के अंदर क्या है, इसको खोल के अगर ऐसे पाइप के अंदर देखेंगे तो पाइप के अंदर आपको क्या मिलेगा? ये अगर मान लीजिए ये अंदर का जगह है तो पाइप के अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, ऐसा कुछ लंबा लंबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे उंगली जैसा उसके अंदर प्रोजेक्शन मिलेगा। इसको बोलते हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाई। इसको बोलते हैं विलाई। कहां रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां रहेगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन ভিতর থাকে এই ভিলাই। এই ভিলাই কি করে? এই যে ये है आपका ভিলাই, ये है एक ভিলাই, ये है आपका एक ভিলাই, ये है आपका एक ভিলাই, ये है एक ভিলাই। এই ভিলাই ইন্টেস্টাইনের ভিতর থাকে। ই কি করে? खाना एब्जॉर्ब करे। আমি যে खाना दाना जी खालू और एब्जॉर्ब कहां से होता है? इस वॉल से होगा। ये विलाई के वॉल से एब्जॉर्ब होगा। ये विलाई के जो वॉल है, इस वॉल से आपका जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल बोलिए, ग्लूकोज बोलिए, एमाइनो एसिड बोलिए, ये सब आपका इस वॉल से आपका अंदर एब्जॉर्ब होगा। और इस विलाई के अंदर क्या है? इस विलाई के अंदर आपका ब्लड वेसल है जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है। इसके अंदर ब्लड है तो ब्लड में चला जाएगा खाना।
ब्लड बाद में उसको पूरा बॉडी में घुमाएगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एसिमिलेशन करेगा। समझे? तो विलाई आपका है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये कहां रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, इसको बोलेंगे साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? या तो अपना डाइजेशन खत्म, एब्जॉर्प्शन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्लासेस में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे बाकी के थोड़ा प्रोसेसेस, बाकी का प्रोसेस जैसे रिस्पिरेशन, जैसे सर्कुलेशन, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट हम लोग का काम कर रहा है, रेस्पिरेशन में लंग्स काम करता है, लंग्स कैसे काम करता है, उसके बाद एक्सक्रीशन, हम लोग के जो यूरिन होता है, यूरिनेशन जो हो रहा है वो कैसे होता है, वो आपका किडनी कैसे काम करता है, किडनी कैसे फिल्टर करता है, वो सब हम लोग का नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हम लोग का सर्कुलेशन है, जी हमारा एक्सक्रीशन আছে, हमारा रेस्पिरेशन আছে, তাতে আমি এইবিলাক বস্তু ডিটেইলছত আমি চাম। ঠিক আছে, आज का क्लास इधर खत्म। थैंक यू सो मच।